Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, Sir, morning, sir. sir. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning. So previously we have done all the thermodynamics laws and their application. So that application also we will see in the power plants how a thermal energy can be converted into mechanical energy, and that mechanical energy is used to make electrical energy. Okay, so how it is possible? So for that we have contents of the this lecture, introduction of the power plant. Then we'll see the classification and the various categories of the power plants, conventional and unconventional. And lastly, we will see the difference between the gas, thermal, and IC engine power plants. This is very important. This topic has been asked for so many times in the RTU exam. So I have taken as a one topic content of this particular lecture. Okay, so let's start with the flow chart of the for the classification. But before that, I need to make you understand how these power plants works. How we will, what is the meaning of power plant? The plant which is going to produce power. Power is nothing but it is electrical power. Okay, nothing else. It is electrical power. It must be in kilowatt इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे पास सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कहाँ से आ रही है, क्या क्या तरीके हैं, और वो तरीके हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, हाउ आवर स्टडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पावर इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, सो बिफोर दैट Sir, यू जस्ट यस. सर वो sir, कार्नोट साइकिल Carnot वाला cycle. टॉपिक। कॉर्नर साइकिल का हम बता देंगे बच्चों, ठीक है. कॉर्नर साइकिल वी विल सी इन द आईसी इंजन आल्सो. आईसी इंजन, ठीक है. नोट्स में मैंने डाला था कॉर्नर साइकिल इज वेरी सिंपल एंड इट इज आइडियल साइकिल. It is not a practical. That's why I have Okay, left it, and we will see that in the IC engine unit, the second unit, IC engine and hydraulic pumps. We will see there. Okay. okay, sir. So let's start with the power plants. Introduction to the power plants. I have told you how electricity can be generated. That plant can be known as power plants. आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दो, that small or your big large space is known as power plants. Okay? A power plant is an industrial facility used to generate electricity with the help of one or more generators, which converts different energy resources into electric power. अभी different energy sources कौन सी है? डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज कौन सी है कि कुछ भी हो सकती हैं, इसी के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया. ठीक है, हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर. इनपुट पे क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट. और इनपुट पे कैसे वो इनपुट आ रहा है, वो सॉलिड फ्यूल से आ रहा है, लिक्विड से आ रहा है, गैस से आ रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कैटेगराइज ऑल द पावर प्लांट्स. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज द सेकेंडरी एनर्जी सोर्स. ध्यान रहे, मैंने बस जब बताया था कि व्हाट आर द एनर्जीज, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया था क्या, टोटल एनर्जी में क्या क्या आया था, मैंने बोला था न्यूक्लियर एनर्जी आएगा, केमिकल एनर्जी आएगा, प्लस Thermal energy. थर्मल एनर्जी आएगा, और मैकेनिकल एनर्जी Kinetic, आएगा. kinetic energy. यस, मैकेनिकल में ही काइनेटिक और पोटेंशियल है. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. जो आज तक हम लोगों ने टोटल एनर्जी की बात की है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बोथ विल कंबाइन एंड मेक द मैकेनिकल एनर्जी. और हमेशा हमने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व. क्यों कहा, क्योंकि हमने जब भी ये अप्लाई किया है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तब हमने ये अज्यूम किया है कि देयर विल नॉट बी एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, देयर विल नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, देयर विल नॉट बी एनी टेम्परेचर चेंजेस, देयर विल नॉट बी एनी फेज चेंजेस. Okay, only the kinetic energy convert to the potential energy, sometimes potential energy convert to the kinetic energy. That's why we can directly write like total energy equals to mechanical energy. और यही हम टोटल एनर्जी को कंजर्व करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी ही होती है वो. बट हम मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोल रहे थे वहाँ पे, बट इट कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. देयर इज नॉट एनी व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहीं नहीं है.
These are the primary energies. From these primary energies, secondary energy can be converted. आप थर्मल केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो. So electrical energy is secondary energy resources, which means that the electricity is obtained from the conversion of the other primary sources of energy. So these are the primary resources: nuclear, chemical, thermal and mechanical. Such as, अब देखिए ये एनर्जी कहाँ से आ सकती है? हो सकता है कोल से आए, हो सकता है नेचुरल गैसेस से आए, न्यूक्लियर रिएक्शन से आए, सोलर से भी आ सकता है, विंड से भी आ सकता है. The energy sources used to make electricity can be renewable or non-renewable. Renewable और non-renewable में दो बहुत ही important difference है. देखिए अभी हम लोग देखेंगे आगे. Renewable मतलब नाम से पता चल रहा है फिर से नया किया जा सके. Non-renewable मतलब वो फिर से नहीं बन सकता. एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो आपको उसको रीयूज नहीं कर सकते आप. Renewable में आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है. और दूसरा डिफरेंस ये है, रिन्यूएबल का मतलब है वो एबेंडेंसी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पास, बट आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है. नॉन रिन्यूएबल मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, उसके कुछ प्राइस होंगे, वो लिमिटेड होगा, वो खत्म हो जाएगा. तो आपके दिमाग में आ रहा है कौन कौन सी होंगी रिसोर्सेज? दिमाग में आ रहा है रिसोर्सेज कौन कौन सी होंगी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में? नॉन रिन्यूएबल वाला खत्म हो जाएगा, आप जितना यूज करोगे वो कम होता जाएगा, स्टोरेज कम है. लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, नेचुरल गैसेस जो हम जनरेट कर रहे हैं वो खत्म हो सकती हैं. और रिन्यूएबल कौन सी हैं? सोलर, विंड, ओशन वेव्स, उससे जो एनर्जी आएगी वो रिन्यूएबल है, खत्म नहीं होंगी वो. बट इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ नीदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. इलेक्ट्रिसिटी ना ही रिन्यूएबल है ना ही नॉन रिन्यूएबल है. आप जितना जनरेट करोगे उतना जनरेट होगा, नहीं करोगे नहीं होगा. The power plant is the location in which the energy conversion takes place. Energy conversion जहाँ पे हो रहा है, that space is known as power plants. Okay? तो conversion अगर आपको मैं बोलूँ कि हमें conversion करना है mechanical energy to electrical energy, तो आप बीच में क्या लगाओगे? अगर थर्मल एनर्जी है उससे कन्वर्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बीच में क्या लगाएंगे? ये मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है कहीं से आए, ये कई तरह के तरीके हैं. ये हो सकता है वाटर की एनर्जी हो सकती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होगा. तो हाइड्रोलिक एनर्जी से यूज मैकेनिकल बना, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बना. डायरेक्ट हाइड्रोलिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, हाइड्रोलिक एनर्जी हो सकता है. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में अपने आप तो होगा नहीं, बीच में क्या लगाएंगे? बीच में ऐसा कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे जिससे ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा? थर्मल से इलेक्ट्रिकल क्या लगाएंगे? सर टरबाइन, स्लाइड टरबाइन, फैंस आते हैं ना जो वाटर रिसोर्सेज को, टरबाइंस लगाएंगे. टरबाइंस, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है. मोटर्स सर टरबाइंस ही लगेंगे. टरबाइंस लगेंगे. टरबाइन के साथ एक और चीज लगेगा, अभी वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, मैं बताता हूँ. अभी थर्मल एनर्जी से डायरेक्ट कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में, तो सोलर पैनल लगा सकते हैं. सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, थर्मल एनर्जी, इन्वर्टर थर्मल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. सोच के बताइए, थोड़ा सा सोच के आंसर दो. इन्वर्टर में कहाँ से थर्मल एनर्जी? गर्म हो जाता है क्या? गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी एसी टू डीसी करता है सर, डीसी टू एसी, सॉरी. सोलर टू सोलर पैनल्स. सोलर पैनल से क्या होता है, इस सोलर पैनल पे जो प्लेट्स लगी हुई हैं वो सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं. अगर उनको थोड़ा भी टेम्परेचर राइज करो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का एक मोस्ट सेट डायरेक्शन अगर दे दें हम, अगर छोटा सा वोल्टेज भी दें तो उस वोल्टेज डिफरेंस दें तो उसमें करंट फ्लो कराने लगेंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. मैकेनिकल एनर्जी से क्या क्या चीज हो सकता है? बीच में क्या लगाएंगे? टरबाइन प्लस जनरेटर. जनरेटर आपने सुना होगा फैराडे लॉ, इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए d∅/dt, that will be EMF. EMF is nothing but
इट इज वोल्टेज डिफरेंस। तो ये वोल्टेज डिफरेंस अगर आ गया तो आपके पास करंट भी आएगा, ठीक है। तो टरबाइन के साथ जनरेटर लगता है, टरबाइन रोटेट होता है, और रोटेट क्या करता है, जनरेटर को। तो जनरेटर को जैसे ही रोटेट करोगे आपके पास फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज की वजह से आपको वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज की वजह से आपको करंट मिलेगा, करंट से आपको इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा, V इंटू आई। वोल्टेज भी आपके पास, करंट भी आपके पास, पावर मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। थर्मल एनर्जी डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर पैनल से, और भी बहुत सारे तरीके होंगे। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी पाने के लिए आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ ऑलरेडी एक थर्मल एनर्जी भी हो सकता है। थर्मल एनर्जी से फिर मैकेनिकल कन्वर्ट करें, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी पे हमारे मैक्सिमम पावर प्लांट्स इंडिया में काम करते हैं। थर्मल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक पावर मैक्सिमम। उसके बाद आपको पता होगा विंड पता होगा, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वन बाय वन हम लोग देखेंगे, कैटेगराइज भी करेंगे, ताकि हमारा आज ये पावर प्लांट का लेक्चर कंप्लीट हो। आपकी 12 बजे क्लास भी होगी वैसे। टाइम टेबल में तो लिखा नहीं है, आप मैम से थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं 10 से 11 लेने के लिए। सर थर्मल टू मैकेनिकल कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारा बीच में ब्रेक हो जाता है, बिकॉज हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा है, और थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल और विद रियल लाइफ एग्जांपल, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो दिक्कत होती है, बीच में छोड़ भी नहीं सकते। हमारा अगर एक टॉपिक भी मैं पढ़ाऊँ तो हो सकता है 1 घंटा से ज़्यादा हो जाए, एक टॉपिक भी पढ़ाऊँ तो थोड़ा मैम से अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग 10 से 11 लें, जो टाइमिंग है आपका, तो एक बार रिक्वेस्ट करके आप लोग बताइएगा। नहीं ले सकती, नहीं ले सकती हैं? नहीं अच्छा, उन बोल लोग, चुकी हैं। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब हमने यहाँ पे कैटेगराइज करना है पावर प्लांट्स को। तो पावर प्लांट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कन्वेंशनल पावर प्लांट एंड सेकंड इज अनकन्वेंशनल पावर प्लांट। First is conventional and second one is unconventional. What is the meaning of conventional? Conventional का मतलब है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। Unconventional मतलब अभी नया नया आया है और ये काफी अच्छा करने वाला है। That is known as a conventional and unconventional. Conventional मतलब जो हमेशा से चलता आ रहा है, स्टीरियोटाइप, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। और उसी में आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे कन्वेंशनल है तो यहाँ नॉन है, यहाँ अनकन्वेंशनल है तो रिन्यूएबल है, नॉन हट गया, ठीक है। तो कन्वेंशनल आएगा तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में यूज होंगे, और उससे जो पावर प्लांट बनेंगी दैट इज कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। और जब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आप यूज करोगे तो वो जो पावर प्लांट्स होंगी वो क्या होंगी, अनकन्वेंशनल पावर प्लांट्स। सो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो जमीन में कई सालों तक रह गए होंगे, उससे बना होगा फ्यूल, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर प्रेशराइज हो के बने होंगे फ्यूल्स, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स किस किस टाइप के होते हैं। उसके बाद दूसरा हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, वी हैव स्टडीड इन द फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री आल्सो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तीसरा कैटेगरी। अब ये फॉसिल फ्यूल्स में भी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड फ्यूल। फ्यूल तो सॉलिड भी हो सकता है, फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है, एंड फ्यूल कैन बी गैस आल्सो। उसके बेसिस पे पावर प्लांट की कैटेगरी है। नेक्स्ट है हमारा अनकन्वेंशनल पावर प्लांट। अनकन्वेंशनल पावर प्लांट में आता है पहला विंड टरबाइन पावर प्लांट। जो हवा है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल है, हवा, एयर, विंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? रिन्यूएबल। क्या सर विंड फ्लो करती है, उसके अंदर कोई वेलोसिटी। कौन फ्लो करता है? सर विंड मतलब एक प्रकार की मतलब फोर्स एग्जर्ट करता है टरबाइन पे, जब जाके वो मूव करती है टरबाइन। फ्लोइंग एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। ओके। फ्लोइंग एयर इज विंड। एयर कैन बी स्टैटिक, एयर कैन बी फ्लोइंग, ठीक है। तो एयर तो जनरल टर्म हो गया। जब फ्लो करने लगेगा तो उसको बोलेंगे विंड। फ्लो करना है मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी है मतलब कौन सी एनर्जी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी।
kinetic energy, and kinetic energy comes under mechanical energy, and that mechanical energy is converted into electrical energy by using turbine and generator. Okay, उसके बाद सेकेंड इज, तो विंड क्या है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा नेचर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सोलर पावर प्लांट। सोलर एनर्जी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है, सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट इज जियो थर्मल पावर प्लांट। ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। आपको पता होगा अर्थ के अंदर बहुत ही टेम्परेचर राइज बहुत ही ज़्यादा भी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर को यूज़ कर लें अगर हम पावर जनरेट करने में, तो दैट पावर प्लांट विल नोन एज जियो थर्मल पावर प्लांट एंड इट इज़ ऑल्सो अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बायोगैस पावर प्लांट ये भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो लोग बेचने लगे हैं, उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे अगर पावर प्लांट जनरेट हो रही है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ठीक है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो जियोथर्मल एक बार आप बता देना। अभी बेटा ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा वन बाय वन। नाम देख लो यहाँ पे, जियो थर्मल पावर प्लांट। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब है टेम्परेचर ज्यादा होना या कम होना, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टू मेक स्टीम, और इस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे वन बाय वन, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बस ओवरव्यू चल रहा है। ओके, आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स। इन जनरल पावर प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वो देख लिया हमने, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल पावर प्लांट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट। फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट, और फॉसिल फ्यूल्स में भी तीन तरह के होते हैं, वो भी देखेंगे वन बाय वन। तो कन्वेंशनल पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड डीजल। कोल क्या है, सॉलिड है, नेचुरल गैस क्या है, गैस है, डीजल क्या है, लिक्विड। इन तीनों से भी हम पावर प्लांट जनरेट कर सकते हैं। सबके पास आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। अगर आप इसको बर्न करोगे तो उसके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट होगा, और उस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को थर्मल एनर्जी बोलेंगे। थर्मल एनर्जी से कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल, मैकेनिकल से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक एक कंपोनेंट के बारे में देखना है। अभी कंपोनेंट में बॉयलर और टरबाइन हमको डिटेल्स में चैप्टर्स हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन, लेकिन अभी हमको सिर्फ कंपोनेंट देखना है और कंपोनेंट का एक छोटा सा फंक्शन देखना है। बॉयलर का काम क्या है, टेम्परेचर को राइज करना। टरबाइन का क्या काम है, रोटेट होना। रोटेट होके क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। उस मैकेनिकल एनर्जी को कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। तो थर्मल एनर्जी पहला है जो सॉलिड फ्यूल पे काम करता है, कोल पे, तो उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। इफ कोल इज यूज्ड टू मेक high pressure steam, then it is known as thermal power plant. It works on Rankine cycle. It works on Rankine cycle. अब Rankine cycle है कैसा, देखिए मैं यहाँ पे उसका TS डायग्राम बना रहा हूँ। TS डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। वहाँ पे एक होता है डोम बोलते हैं इसको, इस कर्व को, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में होता है लिक्विड फेज, इसके राइट साइड में होता है गैसियस फेज, और बीच में क्या होगा, L+G। यहाँ पे फेज चेंज होगा बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हो जाती है प्रेशर लाइंस जो कांस्टेंट होती है। वो प्रेशर लाइंस ऐसी होती हैं लिक्विड फेज में ऐसे, और आपको पता होगा जो फेज कन्वर्जन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और कांस्टेंट प्रेशर पे है, उसी लाइन पे है, तो बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगा। उसके बाद टेम्परेचर राइज होगा बट प्रेशर चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो जब ऊपर बनाओगे ये ऐसा ही लाइन, ये लाइन, तो उसको बोलते हैं हाई प्रेशर। और एक और नीचे अगर बनाए हम लो प्रेशर की लाइन तो ऐसी बनेगी, ठीक है। ये है P1, तो ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है, एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। अब कैसे काम कर रहा है आप ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, पंप से वाटर को लिफ्ट किया, बॉयलर में डाल दिया। बॉयलर में क्या करेंगे आप, हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे ना, तो हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट होगी कहाँ पे, 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। 4 से 1 पे गया, हाई स्टीम बॉयलर बन, हाई प्रेशर स्टीम बन गया। अब वो हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन, आपको पता है टरबाइन में ब्लेड्स होती हैं, अगर आप इधर से देखोगे राइट साइड से तो इसमें ब्लेड्स होंगी ऐसे। आप सपोज करो कि इस पे स्टीम आए, बहुत ही हाई प्रेशर स्टीम ऐसे,
हाई प्रेशर स्टीम। स्टीम टेम्परेचर क्यों बढ़ाया हमने बॉयलर में, ताकि वॉल्यूम ज्यादा हो। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, बॉयलर की साइज तो वही है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज होगा, तो हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होगी और इस टरबाइन को रोटेट कराएगी। तो ये रोटेट होगा शाफ्ट। अगर इसमें हम मैग्नेट लगा दें, आगे मैग्नेट लगा दें, तो मैग्नेट रोटेट होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। यस यस सर। ठीक है, तो हमारे पास 4 पॉइंट पे, ये हमारा 4 पॉइंट है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, सॉरी ये 4 नहीं 3 है, सॉरी दिस इज 3। थर्ड पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अब थर्ड से हमने गए हम लोग प्रेशर को राइज किए कांस्टेंट एंट्रोपी पे, प्रेशर राइज किए। ठीक है, प्रेशर, अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एंट्रोपी चेंज होगी और ये जाएगा पॉइंट नंबर, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ से टेम्परेचर आप राइज करोगे, बॉयलर है 4 के बाद क्या है, इस 4 के बाद क्या है, बॉयलर आएगा। बॉयलर करेगा हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करेगा, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करेगा उसका, सॉरी यहाँ पे पहले क्या था, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट अगर लिख दूं एस, ये एस पॉइंट है, एस से पहले लिक्विड है या गैस है, लिक्विड में, देखिए लेफ्ट साइड में पूरा लिक्विड है, और अंदर जाएगा तो फेस चेंज होगा उसका, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अंदर गया तो डोम के अंदर, ये डोम है, दिस इज डोम, इसको डोम बोलते हैं, ये इमेजिनरी कर्व है, इसके ऊपर ही बनाते हैं हम लोग ताकि पता चल जाए कि लिक्विड फेस किधर है, गैसियस फेस किधर है। तो अब यहाँ से, अब बॉयलर में स्टीम भी बननी है, तो स्टीम बनेगा तो यहाँ पे ऊपर ही जाएगा, उसी प्रेशर पे ही स्टीम बन गया ये। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये पॉइंट है 1। ठीक है, उसके बाद टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में जब जाएगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे हमने पूरे गैस को एक साथ निकाल दिया पूरे टरबाइन पे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, कम। एग्जैक्टली, इधर गैस है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा अचानक से। वॉल्यूम के बढ़ना मतलब हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, P इंटू डेल्टा V भी था, du प्लस पी डी वी, ये देखा था टर्म। वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन मिलेगा, ये क्या था, dw। वॉल्यूम चेंज हुआ है, प्रेशर भी चेंज हुआ है, तो प्रेशर P1 से P2 हुआ है, तो हमको वर्क डन मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, टरबाइन के बाहर आ चुका है, पॉइंट नंबर 2। अब ये 2 से 3 हमने क्या किया है, कंडेंसर लगाया है। कंडेंसर का क्या काम होता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो कंडेंसर जैसे लगाया आपने, ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होकर 3 पे आ जाएगा। ठीक है, 3 से फिर से आप पंप लगाओगे, पंप लगाओगे लिफ्ट होगा, पानी जाएगा बॉयलर के अंदर, बॉयलर के बाद ये स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा फिर टरबाइन में जाएगा, तो ये साइकिल चलती जाएगी और इसी साइकिल को बोलते हैं रैंकिन साइकिल। ठीक है, इस पे काम करता है कौन, बट आपको ध्यान में देना है कि पावर कहाँ जनरेट हो रही है, टरबाइन में क्या जनरेट हो रही है, मैकेनिकल से यहाँ पे आप जनरेटर लगा दोगे जिसको बोलते हैं जी, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट चलते हैं बी, ये सारा पॉइंट्स वही लिखा हुआ है, एक एक करके आप देखिएगा, सारा पॉइंट वही लिखा है। पोलराइज्ड कोल यूज किया जाता है बॉयलर के पास। कोल कहाँ पे यूज होगा, बॉयलर के पास। कोल जलाएंगे तो बॉयलर क्या होगा, हाई टेम्परेचर जनरेट करेगा, हाई टेम्परेचर से स्टीम बनेगी। तो सारा स्टेप वाइज ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट इज द गैस पावर प्लांट। अगर आप गैस फ्यूल यूज करते हो दैट पावर प्लांट इज नोन एज गैस पावर प्लांट एंड इट वर्क्स ऑन ब्रेटन साइकिल। अभी मैं साइकिल बनाता हूँ, पहले ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम दिख रहा है आपको सबको, क्लियर है? Yes. तो देखिए यहाँ पे एयर को यूज किया जा रहा है, एयर को अंदर भेजा गया, एयर इनटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर लिया गया, एयर इज आल्सो अ गैस।
अब इसको भेजा गया कंप्रेसर में। कंप्रेसर का काम मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कंप्रेसर का काम क्या है? टेम्परेचर राइज करना और प्रेशर राइज करना। ठीक है, दोनों राइज करना है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या हुआ? प्रेशर राइज हुआ। देखिए आप, जैसे अगर ऐसा शेप बना हुआ है, अगर ये इनपुट है, ऐसा डायरेक्शन है, इनपुट ये है और ये आउटपुट है, तो आप देख रहे हो कि एरिया बढ़ता जा रहा है। ऐसा टरबाइन होगा अगर कॉनिकल शेप का, तो ये क्या एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब आगे जाने पे वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। अगर इसका जस्ट अपोजिट बना है, इनपुट और आउटपुट, अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो क्या हो रहा है? एरिया कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा। वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर राइज हो रहा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। जिसको भी समझ में आएगा प्लीज तुरंत के तुरंत पूछेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कंफ्यूजन लेके आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर राइज होगा। तो आप कंप्रेसर देखेंगे, टरबाइन के जस्ट अपोजिट होगा। कंप्रेसर में टेम्परेचर और प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होते ही एयर जाएगा अंदर। ऑयल फ्यूल डाल रहे हैं हम, तो पहले ही कंबस्टन चैम्बर से पहले ही एयर के साथ मिक्स होके वो एयर बना लेगा, ठीक है। फ्यूल डालेंगे ऑयल, लेकिन एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो बन जाएगा गैस जैसा। एयर प्लस फ्यूल, ये बन जाएगा गैस। अब ये गैस कंबस्टन चैम्बर मतलब वहां पे फायरिंग होगी तो बहुत ही अचानक से एक्सपेंशन होगा। उस एक्सपेंशन की वजह से हाई प्रेशर गैसेस जनरेट होंगी और वो टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेंगी और जो बचे हुए गैसेस होंगे वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उससे जोड़ दिया गया अल्टरनेटर इज समटाइम्स कॉल्ड एज जनरेटर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जनरेट हुआ मैकेनिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इट कम्स फ्रॉम थर्मल एनर्जी। देख सकते हो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जनरेट हुआ है। थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब आप देखेंगे कंप्रेसर जो पावर हमारा जनरेट हुआ गैस टरबाइन से, उसी से जो पावर पीछे हमने क्या किया, एक शाफ्ट को लगा दिया है और ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है और कपलिंग कर दी गई। कपलिंग मतलब है ज्वाइंट किया गया है। परमानेंट ज्वाइंट नहीं है ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी ज्वाइंट्स है। इसके साथ जोड़ दिया गया जिससे कंप्रेसर भी रोटेट करे और टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाए। एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि इस फ्यूल को क्या करता है? बर्न कर सकता है। तो बर्न करते ही ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अब मैंने दिखाया था ऊपर कि इट वर्क्स ऑन ब्रेटन साइकिल। व्हाट इज ब्रेटन साइकिल? दिस इज T, दिस इज S डायग्राम। अब यहाँ पे बताइए आप लोग, कंबस्टन चेंबर के बाद से कंबस्टन चेंबर है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर ने क्या किया? एयर को, तो इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है, एयर बहुत ही ज्यादा होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, इसका रेशियो 1 से ज्यादा होता है। मतलब एयर बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि बस फ्यूल ज्यादा होता है। एयर फ्यूल का रेशियो 10 से ज्यादा होता है। एयर बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाएगा वो एयर को माना जाएगा। एयर क्या है? गैस है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर रैंकाइन साइकिल बनाई थी, तो गैसियस जो स्टेट है वो लेफ्ट साइड में है, तो डोम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हर जगह गैस 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 है। यहाँ पे भी एयर गया हुआ है और एयर फ्यूल के साथ मिलके भी गैस बना रही है, तो सब कुछ उस डोम के लेफ्ट साइड में बनेगा। तो डोम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उस डोम शेप को बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास 2 ही प्रेशर कर्व होंगे। जो प्रेशर कर्व आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में ऐसे जा रही थी प्रेशर लाइंस, ये जो ग्रीन कलर की थी ये वाली, एक ये और एक ये। तो ऐसी ही यहाँ पे बनेंगी क्योंकि पूरा का पूरा गैसियस फेज में है, सब कुछ गैसियस फेज में है। जहां भी समझ में ना आए पूछिएगा। एक प्रेशर लाइन ये है और एक प्रेशर लाइन ये है, सारा चीज गैसियस फेज में है। मैं इसको, किसी को डाउट है? सर ये कपलिंग का एक बार ऑफिस बताओ, तो कपलिंग के अंदर होता है क्या? एक सेकंड कपलिंग बता रहा हूँ।
मैं साइकिल बनाना चाहता हूँ डायग्राम के बगल में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कपलिंग क्या है, देखो बेटा, ये एक शाफ्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर और ट्रॉली, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली दोनों के बीच में ज्वाइंट कैसे होती है, ज्वाइंट कैसे होती है, दोनों को ज्वाइंट, कभी ट्रैक्टर अकेले चलता है, कभी ट्रॉली के साथ चलता है। जब ट्रॉली को साथ में लेके जाना है तो क्या करते हैं, पीछे आप देखोगे सर्कुलर होगा और इसमें दोनों के सर्कल पार्ट्स को लगा दिया गया होगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक पिन को जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। वैसे ही इस टाइप की ज्वाइंट यहाँ पे बनाया जाता है, बट वो फेस टू फेस है, एक शाफ्ट है और इधर भी एक शाफ्ट है। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे एक आप एक्सटेंडेड पार्ट बना दो इस पे, ठीक है, इस पे एक्सटेंडेड पार्ट बना दो ऊपर इस शाफ्ट के ऊपर, और इधर इसके ऊपर इधर एक्सटेंडेड पार्ट बना दो, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इधर इसके साथ, ये शाफ्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड में इसका एक्सटेंडेड पार्ट आ जाएगा, इसका एक्सटेंडेड पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। जब ये रोटेट होंगे तो निकल नहीं सकते हैं, एक साथ रोटेट होंगे, ठीक है। ये कपलिंग हो गया। तो सब पावर जो टरबाइन, उसी पावर को यूज किया जा रहा है कंप्रेसर को चलाने के लिए। कपलिंग का मतलब अभी ये समझ लो, या ज्वाइंट है, ये परमानेंट ज्वाइंट मान लो यार, वेल्डिंग कर दिया गया है मान लो। मेन ये काम है कि कंप्रेसर को अलग से पावर नहीं दी जा रही है, जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं उसी पावर को थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहे हैं कंप्रेसर को रोटेट कराने के लिए। बचा हुआ पावर कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। ओके सर, ठीक है, यस सर। चलिए देखिए ब्रेटन साइकिल, जल्दी से देखते हैं इसको। तो दो प्रेशर लाइंस होंगी ऐसे, पॉइंट 1 यहाँ पर है कंप्रेसर से पहले 1, कंप्रेसर के बाद 2, कंबस्टन चैम्बर के बाद 3 के बाद यहाँ पे आएगा 4, 3, 4, ठीक है। 4 से 1 आप देख रहे होंगे एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, और वही एयर फिर से यूज किया जा रहा है कहाँ पे, एयर इनटेक के लिए, इसको फिल्टर करके फिर से यूज किया जा रहा है। तो ये साइकिल चलेगी ऐसे। फर्स्ट पॉइंट इज एट अ लोअर प्रेशर, प्रेशर पहले कम था कंप्रेसर से पहले, ये P1 है और ये P2 है, P2 इज ग्रेटर देन P1। इन द सेम फॉर TS डायग्राम एट अ कांस्टेंट एंट्रोपी, आप ये पूरा का पूरा नोट कर सकते हो, पूरा डेफिनेशन में लिख सकते हो, वर्किंग प्रोसेस में लिख सकते हो कि द फर्स्ट 1 to 2 इज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2, 2 से 3 हीट सप्लाई हो रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रहे, एट अ कांस्टेंट प्रेशर दैट इज P2। 3 to 4 क्या हो रहा है, टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन। तो 3 to 4 एट कांस्टेंट एंट्रोपी, या फिर बोले आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 इज एग्जॉस्ट, 4 to 1 इज एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये है ब्रेटन साइकिल, और ये साइकिल फिर से चलती रहेगी, पावर जनरेट होता रहेगा। पावर जनरेट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पे मिल रहा है आपको वर्क आउट, यहाँ पे हो रहा है हीट सप्लाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेसर में वर्क इनपुट, कंप्रेसर के द्वारा वर्क इनपुट हो रहा है। वो वर्क इनपुट कहाँ से मिल रहा है, अल्टीमेटली हमको टरबाइन से ही मिल रहा है। जो वर्क आउटपुट है इसका कुछ पार्ट वर्क इन में डाल दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस टरबाइन। नेक्स्ट आता है लिक्विड फ्यूल पे काम करने वाला पावर प्लांट, दैट इज आईसी इंजन पावर प्लांट। ये वर्क करता है या तो डीजल या फिर पेट्रोल, आर यूज्ड टू रोटेट द क्रैंक शाफ्ट व्हिच इज finally connected to the generator to produce electricity. These type of power plant are same as IC engine, diesel and petrol engine. IC engine जैसे काम करता है, जैसे हमारी व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जो उनका प्रिंसिपल है वर्क करने का, वैसे ही काम करता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है जो जैसे कई सारे शादियों में जनरेटर यूज किया जाता है,
दैट जनरेटर इज द पावर प्लांट, सिंपल पावर प्लांट। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो, बहुत ही छोटा सा जनरेटर है। उसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में, मैकेनिकल फिर से कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में। तो जो पावर प्लांट की अगर बात करें तो वहां पे एक डीजल इंजन होगा, यहाँ पे डीजल इंजन है, ठीक है। अब इसमें फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल डाला जाता है। फ्यूल को जलने के लिए आपको एयर भी चाहिए, तो कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है। कंप्रेस्ड एयर के पास टेम्परेचर पहले से ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो जल्द बर्न हो सकता है, जल्दी बर्न होगा तो उतना ज्यादा पावर जनरेट करेगा, ठीक है। फिल्टर लगाया गया हमें, क्यों, लुब्रिकेशन ऑयल के लिए। क्यों, क्योंकि इंजन जो होता है उसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है और उसमें मोशन होता है। पिस्टन है और सिलेंडर है, उसमें पिस्टन रोटेट रेसिप्रोकेट करता है अप एंड डाउन या लेफ्ट और राइट, लेफ्ट टू द राइट, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, तो हीट जनरेट होगी। टू ओवरकम दिस द इफेक्ट ऑफ हीट वी हैव टू यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी अंदर सप्लाई की जाती है। तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सिर्फ बनाना है इतना, इतना बनाना है। इसके अंदर जितना भी आ रहा है आपको दिखाना होगा कि एयर भी अंदर जाती है, फ्यूल इंजेक्टर भी जाता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल भी जाता है। उसके बाद यहाँ से पावर जनरेट हो रहा है, जो जनरेटर में भेज दिया जाता है। जनरेटर में जो मैग्नेट रोटेट होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और एग्जॉस्ट गैस भी निकलेगी, आपको पता है इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस भी निकलती है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है साइलेंसर के साथ। साइलेंसर से क्या होता है, आवाज कम हो जाती है, ठीक है। बस ये आपको साइकिल बनाना है। तो वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। तो ये आप लोग इसको पढ़ेंगे और जो मैंने बोला उसको रिकॉल करके हम बाद में इसको समझेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये फॉसिल फ्यूल से अलग है, फॉसिल फ्यूल नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच इज मेंटेन्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, which is to be maintained, मेंटेन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये हैजार्डस हो सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ हो, पढ़े हैं कि नहीं? यस। प्लीज से यस नो। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट। A nuclear power plant is a thermal power station in which the primary source of energy generation is a nuclear reactor. A nuclear reactor is a machine used to inculcate a nuclear chain reaction. न्यूक्लियर चेन रिएक्शन रुक नहीं सकती है अगर उसको रोका ना जाए, कंट्रोल ना किया जाए। As it is a thermal power station, heat generated from a nuclear reactor produces steam which drives a steam turbine. फिर से वही टरबाइन को रोटेट करना है। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या जनरेट होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या क्या जनरेट होती है, रिप्लाई कीजिए। हीट, रेडिएशन। यस, हीट। मेनली हमारा काम क्या है, हीट को पाना। न्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट होगी हीट। अब ये हीट जैसे हम पा गए, हम क्या कर सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं। स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम बना सकते हैं। हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन पर लगाएंगे, टरबाइन जनरेट करेगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे, जनरेटर के थ्रू। यहाँ पे जनरेटर होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट, मेन टारगेट क्या है, टू जनरेट मैकेनिकल एनर्जी। दैट मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली बाय यूजिंग जनरेटर, ठीक है। तो लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, टरबाइन। टरबाइन को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, हाई प्रेशर फ्लूइड हो। फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? लिक्विड प्लस गैसेस। लिक्विड प्लस गैसेस नहीं, लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड का मतलब है, अगर आप इसके नाम पे जाएंगे तो फ्लूइड मतलब द मैटर विच कैन फ्लो। क्या क्या फ्लो कर सकता है, या तो एयर या तो गैस, ठीक है। तो एयर और गैस, सॉरी, एयर, गैस एंड
एयर गैस नहीं, गैस और लिक्विड, गैस एंड और लिक्विड, गैस और लिक्विड। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइड अगर यूज किया जा रहा है, आप जैसे फ्लूइड, जैसे अगर आप डायरेक्टली वाटर यूज कर रहे हो टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वो पावर प्लांट को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यस सर। ठीक है, ये डायग्राम देखो क्या हो रहा है इसमें। न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरा ही, इस कंप्लीट डोम इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग पहले से भी देखे हो, तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है फ्यूल रॉड, फ्यूल रॉड यूरेनियम का हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, जितने भी रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं वो यूज हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें चेन रिएक्शन क्रिएट करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन करने से अगर फ्यूल है, जैसे सपोज यूरेनियम है, यूरेनियम पे अगर आपने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया तो ये जनरेट करेंगे दो बाई प्रोडक्ट्स, या फिर एक, जो भी इस पे डिपेंड करता है ये न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है, उसके बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, और भी प्लस हीट एनर्जी जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन जनरेट हुआ है फिर से रिएक्शन करने जाएगा, फिर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल भी करना जरूरी है। तो एक तो कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं, कंट्रोल रॉड्स क्या करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड्स? आई नीड रिप्लाई। फ्यूजन रेट को कंट्रोल करती है। फ्यूजन रेट को कंट्रोल करती है, कैसे? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके। तो कंट्रोल रॉड्स किसकी बनी होती है, कौन सा मटेरियल होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। कंट्रोल रॉड्स यूरेनियम का कैसे हो जाएगा, वो तो फ्यूल रॉड है ना। हीलियम, कैडमियम और इसका सिल्वर या फिर कैडमियम। बोरॉन। ठीक है, कैडमियम की रॉड्स होती है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा आप क्या हो रहा है। फ्यूल क्या करेगा, हीट जनरेट कर रही होगी। यहाँ पे हीट जनरेट हो चुका है, कहाँ पर, अंदर। यहाँ पे हीट जनरेट हो चुकी है, हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी को क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या है, लिक्विड है, इसके अंदर देखिए आप लोग लिक्विड भरा हुआ, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड जैसे इसमें हमने हीट एनर्जी दी इस लिक्विड को, वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। गैस में नहीं, वो एक हाई टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा और उसको इस पाइप के थ्रू फ्लो कराया जाएगा। वाटर रखा हुआ नहीं, हाई टेम्परेचर गैस नहीं, लिक्विड में ही रहेगा, लिक्विड में रहेगा। यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है वो हैवी वाटर है, कूलेंट बोल सकते हैं इसको, कूलेंट है वो। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सॉरी उसका फेस चेंज नहीं होगा, कूलेंट है वो, कूलेंट है, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, तो अंदर गया तो उसका हीट एनर्जी तो मिला, टेम्परेचर राइज कर लिया, टेम्परेचर राइज किया लेकिन फेस चेंज नहीं हुआ, और वो इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब ये पाइप का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं, ये ट्यूब्स हैं, हो जाएगा, ज्यादा होगा, और उसमें वाटर रखा हुआ है इस वाले बॉक्स में। अब ये वाटर का ये टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा तो स्टीम जनरेट हो जाएगी, स्टीम जनरेट होगी, तो इसको यहाँ से निकाला जाएगा और इसको टरबाइन के ऊपर फ्लो कराया जाएगा। टरबाइन पे ब्लेड्स रोटेट करेंगी, उसमें अल्टरनेटर या जनरेटर लगा हुआ है, ये रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी से को सप्लाई कर दिया गया। और यहाँ पे कूलिंग टावर लगा है, ये आपको कूलिंग टावर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो चुकी है। फिर से जो ये स्टीम ने अपना टेम्परेचर
स्टीम जो एक्सपेंड हो चुका है, उसकी प्रेशर कम हो चुका है, उसका फेस चेंज हो जाएगा यूजिंग कूलिंग वाटर। अब कूलिंग वाटर ने क्या किया, उसको और ठंडा कर दिया। ठंडा करेगा तो फेस चेंज हो जाएगा, जो स्टीम बाहर निकलेगी टरबाइन से, फेस चेंज होगा, फिर से वो सर्कुलेट कर जाएगा इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में वापस आ जाएगा। तो ये पानी बार बार सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो आप लोग देखेंगे, हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पढ़े थे, ये कौन सा सिस्टम बोला जाएगा, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड। मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाहर। मास कहीं ट्रांसफर हो रहा है क्या आउट ऑफ द सिस्टम, बताओ। mass is not going to transfer, only energy is transferred, so it is Closed system. closed system. Okay, next is hydroelectric power plants. Hydroelectric power plants, electricity is produced by building dams or suitable rivers. डैम जो बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? सर रिवर के फ्लो, वाटर के फ्लो को यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, और भी बहुत सारे काम होती है। इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, जहाँ पे पानी की जरूरत है वहाँ पे फ्लो करा दिया जाता है उस डैम से। बट मेन काम क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, वो एक्चुअल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का एक कंपोनेंट है डैम। वहाँ पे अगर डैम जैसे वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे, ये नीचे का सरफेस है, ये डैम है, ठीक है, और इधर से वाटर फ्लो हो रहा था, इसको हमने रोक लिया पूरे वाटर के फ्लो को। और यहाँ पे ये अपनी जितना पानी को रोकते जाओगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी ना, तो हाइट बढ़ती गई, हाइट बढ़ती गई, यहाँ तक पहुँच गया। अब अगर यहाँ से हम वाटर को फॉल कराएं तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पहले पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे गिरेगी तो हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी, और हम यहाँ पे धीरे से क्या रख देंगे, टरबाइंस। टरबाइन क्या करेगा, जब वाटर टकराएगा इसके साथ, इम्पैक्ट लगाएगा तो ब्लेड्स को रोटेट कराएगा, रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट रोटेट होगी, यहाँ पे क्या कर देंगे, जनरेटर लगा देंगे। जैसे जनरेटर रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सिंपल। किसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को यूज किया गया टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द टर्बाइंस, एंड टर्बाइन, व्हेन टर्बाइन रोटेट्स, generator itself it will rotates and the electricity will be generated. ओके, यहाँ पे मैंने यूट्यूब ये जो वीडियो लिंक दिया हुआ है, अभी आपको ये नोट्स से ओपन नहीं होगा, ये जो लिंक है ये आपको मैं पूरा भेजूंगा। अगर आपको जिसको भी ये फिगर से समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देख के समझ सकता है। वो वेरी शॉर्ट वीडियोज आर देयर, 5 to 4 मिनट्स का वीडियो है, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे पानी को रोका गया डैम से, और इसको पाइप के थ्रू अगर टरबाइन से रोटेट करा दें, ये टरबाइन को रोटेट करा दें, और जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर भी रोटेट होगा, जनरेटर रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का, पोटेंशियल एनर्जी है वाटर के पास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ही है, इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेटर को देगा, तो जनरेटर रोटेट होगा, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आ रहा समझ में? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी नहीं हो पाएगा, आपकी क्लास भी है तो 12 बजे से। ओके, तो
तक के लिए जितने भी वीडियो लिंक मैंने दिया है, जितने वीडियो लिंक मैंने शेयर किया है अभी इस नोट्स में, कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तक है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स आते हैं जिसमें विंड टर्बाइन, सोलर, जियोथर्मल एंड बायोमास। ये आपको देखने नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उससे पहले जितने भी मैंने दिया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसकी भी वीडियो लिंक है, जितने भी वीडियो लिंक है आपको ये देखने हैं। जो नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो क्लिक करोगे तो ओपन होगा, इस नोट्स में क्लिक करोगे तो नहीं ओपन होगा, या फिर आप टाइप करो इतने ज़्यादा ये पूरा तब ओपन होगा। तो ये वीडियो देख के आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि इसमें नोट्स में मैं बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट में लिखा हूँ, तो आप नोट्स वहाँ से भी बना सकते हो। बाकी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सी एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, तो यू कैन एक्सप्लेन दीज ऑल्सो इन योर नोट कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कोई पूछेगा, कोई कौन बताएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या लिख सकते हैं, यू कैन आंसर, कौन बता सकता है? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज करके फिर बाद में मैकेनिकल रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। इन हाइड्रो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट one can use the potential energy of the water or hydraulics. Potential energy of the water is used to produce kinetic energy to rotate the turbine, and that turbine itself rotate generator, and generator produces electricity. ठीक है, अब वो प्रोसेस वन बाय वन कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, या और भी अलग लाइंस में इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके अभी मैंने उसमें पॉइंट वाइज अगर एक्सप्लेन नहीं किए तो बाय यूजिंग द वीडियो लिंक यू कैन राइट द एप्रोप्रिएट आंसर्स। ओके, so let me take your attendance. तो मेरे जब भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो यू डू नॉट ज्वाइन बिफोर मी एंड यू कैन नॉट लीव बिफोर मी। क्लास छोड़ना भी नहीं है मेरे से पहले और ज्वाइन भी नहीं करना मेरे से पहले। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो मेरे से पहले तो प्लीज़ लीव कीजिए, उसके बाद फिर आप चेक कीजिए मैंने ज्वाइन किया कि नहीं। आपके ज्वाइन करने से पहले ही वहाँ पे दिखाता है कि विच पर्सन हैज़ बीन ऑलरेडी ज्वाइन, वहाँ पे दिखाता है अगर मैं ज्वाइन कर चुका हूँ तो आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ उसमें तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट जो ज्वाइन कर लेता है वो उसके पास वो वीडियो लेक्चर चली जाती है, तो फिर वो शेयर नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।